So many children across the country are now asking what's going to happen as far as their assessment is concerned after the government very correctly decided to scrap the class 12 board exams this year. Why? Because of the COVID situation, prioritizing the safety of children. It is a laudable step, an exemplary step, but obviously there are questions which certainly need to be answered. I'll be joined in a few moments by the Secretary in the Government of India to the CBSE, where we've gone through a lot of questions. But before this is what we are learning in terms of what assessment might end up being. Option 1, assess students on performances in class 10, their class 11 final exams, class 12 internal exams. Option 2, assess on the basis of class 10 board exam results and the internal assessments in class 12. So a couple of options over here. What you will just see now is that within a period of 2 weeks, there will probably be clarity on just how students are going to be assessed. The decision of the government to scrap the class 12 board exams. It's a move which has been taken in the interests of the health and safety of millions of students in this country, but several questions obviously arise in the process of assessing students as they try and get into colleges. Will this be a fair process? And what exactly is the assessment process itself going forward? Joining us, perhaps somebody best placed to answer these questions, the Secretary of the CBSE, Mr. Anurag Tripathi. Thanks, Mr. Tripathi, very much for being with us. So, as you can imagine, there are so many children, so many parents really wanting answers, and I'm sure you'd agree that we need to put them out of their tension. So one of the questions most common is, what is the basis on which class 12 students will now be marked? Yeah, thank you. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड इंटायर हायर अप्स को मैं थैंक्स दूंगा जिन्होंने टाइमली डिसीजन लिया है। एंड कोरोना के समय में जब एक बच्चों के सामने खतरा था उनकी हेल्थ को लेकर के, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के, हम लोगों ने एग्जाम कैंसिल किया। आपके प्रश्न का सीधा मैं जवाब ये देता हूं कि बेसिकली 12th का क्राइटेरिया अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इट विल टेक फ्यू डेज, तो थोड़े दिन बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा। 10th का क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर लिया था, पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट कर दिया, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसमें ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है, 7-8 मेंबर्स की कमेटी है। बच्चों के प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, इवन प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर हम बच्चों के रिजल्ट को सर्कुलेट करेंगे। जहां तक 12th की बात है, वो क्राइटेरिया अभी हमने फाइनल नहीं किया है, सर्कुलेट नहीं किया है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि किसी तरह की र्यूमर पर ध्यान नहीं दें, किसी तरह की एंजाइटी में नहीं रहें, कुछ दिन वेट करें। हम पब्लिक डोमेन में उस क्राइटेरिया को सर्कुलेट करेंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं और स्पेशलिस्ट की हम राय लेने के बाद उस चीज को बच्चों के सामने लेकर के आए। So, Mr. Tripathi, would that be another week before the children know how they'll be assessed? मैं डेट्स के बारे में कंफर्म आपको नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इट मे बी टेंटेटिवली 2 weeks टाइम, बट अप्रोक्सीमेटली 2 weeks या उसके थोड़े दिन आगे पीछे हम निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। Okay, next question. Pre-boards are typically tougher exams. They're marked more strictly, which is a fact. It's always been done. You want kids to have a tougher exam earlier so that, you know, they do better in their boards. That's the logic. So do students stand to lose, or, you know, in that sense, or get more weightage for the pre-boards? देखिए, 12th के बारे में क्राइटेरिया अभी हमने सर्कुलेट नहीं किया है, तो इसलिए 12th के बारे में मैं कोई बात इस चैनल के माध्यम से अभी नहीं करना चाह रहा हूं। जो भी क्राइटेरिया सर्कुलेट होगा उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सेम आपके क्वेश्चन क्लास 10th पर मैं लेकर के जाऊं तो क्लास 10th में हमने प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस, इन 3, 4, 5 इवन इंटरनल असेसमेंट को भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और एक कमेटी नॉमिनेट की गई है जो बच्चों के बेस्ट परफॉर्मेंस को बच्चों के बेटर में, उनके फायदे में, उनके फेवर में लेकर के आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस बच्चों के पास हैं कि किसी बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। आई एग्री, इट में भी किसी बच्चे को प्री बोर्ड में कम मार्क्स मिल गया हो, इट में भी इंटरनल में कम मिला हो, इट में भी यूनिट टेस्ट में कम मिला हो, इट में भी उसके बाकी जो बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें कम मिला हो। बट क्राइटेरिया इतना ब्रॉड है, इतना बृहद है, ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं। और जो कमेटी वो स्कूल पर है, स्कूल का प्रिंसिपल कमेटी को चेयर कर रहे हैं, उनके स्कूल के टीचर्स अवेलेबल हैं, दूसरे स्कूल के टीचर भी अवेलेबल हैं। तो कमेटी को भी अथॉरिटी दी गई है कि एक ऑब्जेक्टिव तरीके से बच्चों के मार्क्स को प्रपोज करें जिससे किसी बच्चे का नुकसान नहीं हो। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमारे रिजल्ट से अगर किसी बच्चे को कोई आपत्ति होती है
किसी को किसी तरह की लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आफ्टर दैट रिजल्ट निकालने के बाद कोविड की स्थिति जब नॉर्मल होगी तो हम उसका इंडिविजुअल या उसका एक स्पेशल एग्जाम भी ले सकेंगे। तो दोनों रास्ते हमने खुले रखे हैं। So when will the CBSE declare results? Because university admissions, competitive exams, those who have the opportunity to study abroad, there's a deadline. So how soon would you want to? देखिए, अगर आप टेंटेटिव टाइम लेकर के चलें तो कंट्री के जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, अगस्त में नॉर्मली उनकी प्रोसेस स्टार्ट होती है और सारी चीजें नॉर्मल रहती है। तो अगस्त में उनकी प्रोसेस स्टार्ट होती। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में भी अगर आप देखें, डिफरेंट स्कूलों से बच्चों से बात करें तो फॉरेन स्कूल्स के भी जो ऑफर बच्चों के लिए आ रहे हैं वो अगस्त की बात कर रहे हैं। तो आपको अश्योर करना चाहेंगे ये प्रोसेस हायर इंस्टीट्यूट्स की, यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले हमारी मार्कशीट बच्चों के हाथ में होगी, हमारा रिजल्ट पेरेंट्स और बच्चों के पास होगा, तो बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और अब मेरे पास समय भी अब हम लोगों के पास आ गया, इंटायर जून जुलाई हमारे पास अवेलेबल है, तो विद इन टाइम हम बच्चों को रिजल्ट देंगे और किसी तरह का नुकसान हमारे रिजल्ट के कारण बच्चों का नहीं होगा। You know, Mr. Tripathi, what happened the last time around, again because of COVID, when you were unable to hold CBSE or ICSE board exams and relied on an internal system of evaluation partially, was that there was an inflated system of grades, which in any case, as you know, it's a larger issue. The number of students scoring above 95% is huge. That time around, in the top colleges, anything short of 100% in certain courses or 99.75 in certain courses, right, admission was not possible. But the number of students who actually scored very close to that, at 97%, 95% and above, was at a record high. So again the question is this, is there not the other fear that this system will encourage a massive exaggeration or escalation of grades which make it very difficult for colleges and for students who are otherwise good students? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो असेसमेंट का हमारा क्राइटेरिया होगा और जो हम रिजल्ट निकालेंगे उनमें इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि जिससे किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आए कि किसी बच्चे को जिसका परफॉर्मेंस कम है उसको ज्यादा नंबर मिल रहा है और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी उसको कम मिल रहा है। क्राइटेरिया इतना ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को हम जो भी उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके आसपास बच्चों को मार्क्स मिलेगा। एंड सेकेंडली एग्जाम का ऑप्शन हमने रखा है कि अगर कोई डिससेटिस्फाई होता है तो ऑप्शन भी उसको मिलेगा। जहां तक प्रश्न ये है कि बच्चों को मोर देन 95, मोर देन 97, मोर देन 98% मार्क्स मिलते हैं, मेरा उत्तर आपके चैनल के माध्यम से यही है कि जिस कंट्री में 35 लाख बच्चे 10th एंड 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, वहां कुछ बच्चे तो होंगे जो 100 में 100 लाएंगे, जो 99 लाएंगे, 98 लेकर आएंगे। तो ये the question is that I wish we had colleges which of the same standing which could accommodate these brilliant students. Yes, that's where the problem is, not them scoring 100. I'm just coming the answer. I'm saying कि कुछ बच्चे तो, और हमारा क्राइटेरिया जब हम 100 मार्क्स रखे तो हम क्यों मान के चलेंगे किसी को 100 नहीं मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन पेपर इतना ऑब्जेक्टिव तरीके से है कि बच्चे अगर मॉडल आंसर के आसपास होते तो उनको फुल मार्क्स मिलते हैं। एंड दिस इज अ गुड थिंग कि अगर बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो फुल मार्क्स मिल रहा है। There will be lots of students who will say they want to take the exam again. So therefore it goes down to the examination venue, safety of students there, distancing of students there, wearing a mask always to take that exam. Where will these exams be held? In the parent school or in exam centers? How will that work? सबसे पहले तो मैं आपके रेस्पेक्टिव चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से, बच्चों से, टीचर से कि पहले वो इंतजार करें, वेट करें, भरोसा करें कि हमारा रिजल्ट परफेक्ट होगा और वो सेटिस्फाई होंगे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा होगा जब बच्चे कहेंगे कि नहीं हम डिससेटिस्फाई हैं और हम परीक्षा देंगे। हमने ऑलरेडी क्लियर किया और आज हम फिर क्लियर कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, अगर हम वो परीक्षा बच्चों के लिए लेते हैं जो वो चैलेंज करते हैं, वो हम तभी करेंगे जब सिचुएशन कोविड की बिल्कुल नॉर्मल होगी, जब हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी, जब हेल्थ मिनिस्ट्री और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज हमें एनओसी देंगे कि हाँ सारी चीजें ठीक है और हो सकता है, क्योंकि तब तक हम वो कंडक्ट नहीं कर सकते। तो उस समय जो सिचुएशन होगी, जब वो बच्चों के फेवर में होगी, कोविड की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगी, किसी तरह का खतरा नहीं होगा, तो सारे प्रिकॉशन लेते हुए हम करेंगे। बट हम अभी उस सिचुएशन पर डिस्कस ना करें तो बेटर है, एंटीसिपेट ना करें तो बेटर है, क्योंकि इससे अननेसेसरी की एंजाइटी बच्चों के मन में जाएगी।
अभी आप यही मोटिवेट करें बच्चों को, और मैं भी बच्चों को यही सलाह दूंगा कि हम जो भी रिजल्ट देंगे वो बेस्ट वे में होगा और नॉर्मली आपके साथ होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। एक्सेप्शनल कंडीशन अगर होगी तो उसका समय उस समय के लिए हम छोड़ देते हैं। All right, Mr. Tripathi, lots of questions there. Thank you so much for taking all of these questions and reassuring students who've been waiting really for these answers. Thank you very much, sir, for being with us. Thank you. Thank you. Thank you.